Hi, welcome to Radiance. We are introducing our first podcast based on the sturdiness of our kitchens. So here we have experts from our factory, Mr. Jay Bhatia and Mr. Manish Jangid. हमारे को अभी जो बेसिकली एक अच्छा किचन, एक फंक्शनल किचन, स्टर्डी किचन कैसे बनाया जाता है वर्सेस मॉड्यूलर, तो उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे. मनीष जी, क्या कहना है आपका? स्टडी किचन्स मतलब 2 या 3 तरह से हम लोग बना सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट एक कन्वेंशनल मॉड्यूलर किचन्स, जिसके अकॉर्डिंगली कन्वेंशनल मॉड्यूलर किचन्स में हम लोग पर्टिकुलर कारकेसेस, इंटरनल ड्रॉवर, शटर्स, नीचे लेवलर्स आ जाते हैं, लेग्स आ जाती हैं, स्कर्टिंग्स आ जाती हैं. तो वो एक पर्टिकुलर कन्वेंशनल किचन जो अब तक मॉड्यूलर किचन्स बनते हुए आया है. जय, आपका क्या कहना है सिविल मॉड्यूलर के लिए कि रेडियंस में हमने क्या नया किया है जिसमें किचन और ज़्यादा स्टडी हो सकता है? आप प्लीज़ बताइए. हमने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड के अलावा हमने सिविल नीचे स्कर्टिंग किया है, जो कि कस्टमाइज हाइट होती है. कस्टमर के चॉइस के हिसाब से स्कर्टिंग की हाइट को हम कम और ज़्यादा रख सकते हैं. उसके अलावा हम कन्वेंशनल किचन्स के प्लेटफॉर्म सिविल स्कर्टिंग के ऊपर फिट करते हैं. उसको हम लेवलर्स देते हैं ताकि ड्रॉवर के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आवे. सिविल स्कर्टिंग के ऊपर हम लेवलर से कारकेसेस फिट करते हैं. लुक वाइज वो कन्वेंशनल मॉड्यूलर किचन दिखता है. स्टर्डीनेस सिविल किचन की तरह आता है, एंड इट इज़ फार बेटर देन द प्लिंथ सिस्टम. Okay, so that means when you are constructing a modular kitchen, you have legs, you have skirting, you have carcass, hardware and the front fascias. Yes. But when we talk about civil modular, you have civil skirting, you have carcass, and then you have levelers underneath the carcasses to make it in plumb and right angle. Yes. And then we have the same hardware, we have the same drawer fascias, but the weight of the counter is carried by the civil verticals which are there. Yes. It is not directly coming on the carcass, the base cabinets. So that is one advantage of a civil modular kitchen. Yes, the vertical takes the entire load. Okay. And technically the concept of modular kitchen has come from Europe. What we have Indianized is the civil platform, which the Indian consumer mindset is very used to a traditional construction of modular of the kitchen. We have Indianized the modular kitchen with a conventional method of skirting with vertical, which gives the strength to the kitchen, as well as the purpose of modular kitchen gets solved. All right. So considering the fact that we are building a kitchen in civil using the concept of a modular kitchen, how different is it when we compare to an actual modular versus a civil modular? What is the difference between construction? Is it different in construction? Is it different in terms of storage or practicality? What is your take on it? See, basically there is no huge difference between traditional modular kitchens or conventional modular kitchens. Okay. Basically the cabinet heights are like we can design as per our requirements. Basically the client requirements we can design according to this thing. The height of the cabinet can be customized as per the customer needs. All right. And even जो internal drawer systems हैं, that is also can be designed as per the customer needs. Okay. And जो नीचे का civil skirting है वो भी बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हैं कैबिनेट के डेप्थ के अकॉर्डिंगली. जब लेडी किचन यूज़ कर रही है उस टाइम पे उसका जो खड़े रहने का जो सिचुएशन है उस केस में वो प्रॉपर्ली इसको ऑपरेट कर सकती है कुकिंग एरिया को. ऑलराइट. और क्या और भी कोई बेनिफिट्स हैं या कोई ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते, बट और कोई ऐसे चेंजेस हैं जो सिविल मॉड्यूलर वर्सेस मॉड्यूलर जो आप हाईलाइट करना चाहते हो? एनी अदर डिफरेंस which is there or which is beneficial to the end customer? Any of you, if you would want to add? बेसिकली हाइट, इंडियन लेडी की जो हाइट होती है जो बेसिक 5.5 5.6 इन बिटवीन होती है, तो उसको हाइट को कंसिडर करते हुए हम कैबिनेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. Okay. तो जब लेडी यूज़ कर रही है तो वो उसको कन्वीनियंट होना चाहिए बेस्ड ऑन द यूजेस.
या तो दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेज फॉर द इंडियन वुमेन का जो हाइट है नॉर्मल टिपिकली अगर हम बात करें 5 फीट 6 इंचेस एवरेज हाइट है। तो उनके हाइट के अकॉर्डिंगली जो किचन कैबिनेट का हाइट है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन के पहले डिज़ाइनिंग स्टेज पे हम वो हाइट कंसिडर कर सकते हैं कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम सिविल स्कर्टिंग में हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, वेदर वो 50 mm है या 75 mm है या 100 mm है, और जो कारकस है वो हम चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। ओके मनीष जी, जब हम बात करते हैं सिविल मॉड्यूलर यस उसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है सिंक हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज मॉड्यूलर किचन में सिंक इंस्टॉलेशन का कंसेप्ट अलग है, सिविल मॉड्यूलर में वो अलग होता है। एक मुझे वो जानना है आपसे, सिविल मॉड्यूलर में सिंक इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जब आता है डिश वॉशर को कंसिडर करके, बिकॉज जब हम डिश वॉशर इंस्टॉल करते हैं मॉड्यूलर किचन में तो आप ऑफकोर्स स्कर्टिंग है, आप स्कर्टिंग के पीछे रख सकते हैं, Correct. बट जब सिविल मॉड्यूलर होता है Right. तो उसमें हम डिश वॉशर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये आप मुझे समझाइए। राइट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सिंक का, तो सिंक आप चाहे सेमी मॉड्यूलर किचन ले रहे हैं या कन्वेंशनल टाइप मॉड्यूलर किचन्स ले रहे हैं, तो सिंक के इंस्टॉल करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि एनीवेज जैसे कैबिनेट एक बार इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसके ऊपर से एक प्रॉपर सीमेंट शीट हम लोग अप्लाई कर देते हैं फॉर द काउंटर टॉप, बिलो द काउंटर टॉप। सो बेस्ड ऑन द सिंक का साइज़ उसमें पर्टिकुलर कटआउट्स हो जाते हैं और उसके ऊपर सिंक रेस्ट हो जाता है। ये आप कन्वेंशनल मॉड्यूलर किचन की बात कर रहे हैं। ओके, में सेम एज इट इज़। जो सेकंड पॉइंट था आपका डिश वॉशर्स के लिए, तो जब आप मॉड्यूलर किचन डिज़ाइन करते हो जिसमें पर्टिकुलर प्लास्टिक्स पीवीसी के लेग्स वगैरह होते हैं, स्कर्टिंग्स होती हैं, उस केस में आप जैसे डिश वॉशर प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ डिश वॉशर आप उतना कंसिडर करके चलते हो। लेकिन जैसे ही सिविल मॉड्यूलर किचन्स आ जाता है उस केस में जहाँ भी हम लोग डिश वॉशर प्लान कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में सिविल स्कर्टिंग हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज डिश वॉशर को हमें एकोमोडेट करना है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में उतना सिविल स्कर्टिंग हम लोग होल्ड करते हैं। बेसिकली वहाँ से वो उतना सिविल स्कर्टिंग रखते ही नहीं हैं। जहाँ पर डिश वॉशर का कैविटी है उस कैविटी में स्कर्टिंग नहीं आता है, ताकि आपका डिश वॉशर पर्टिकुलरली वहाँ पे एकोमोडेट हो सके, ऑलराइट, बेस्ड ऑन द साइज और बेस्ड ऑन द हाइट। और ये हम डिश वॉशर दोनों, मतलब अगर आप फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर प्लान करें या बिल्ट इन डिश वॉशर प्लान करें, उसमें जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मेथड है वो सेम है कि जहाँ पर भी कैविटी रखेंगे डिश वॉशर का वहाँ स्कर्टिंग नहीं आएगा। एग्जैक्टली, ऑलराइट। और सेम एज इट इज़ सिनेरियो होता है जहाँ आपका गैस सिलेंडर है। आजकल तो काफ़ी सारे सोसाइटीज़ बंगलोज में एक पर्टिकुलर गैस बैंक होता है, बट जहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पर्टिकुलर आपको गैस सिलेंडर स्टोर करना ही होता है, उस केस में उस पर्टिकुलर एरिया में हम उतना सिविल स्कर्टिंग प्लान नहीं करते हैं, ताकि आपका गैस सिलेंडर इजीली मूव इन और आउट आप कर सको। ओके, ऑलराइट। ये बेनिफिट हम लोग ऐड ऑन उसमें जब आप सिविल किचन लेते हो, सिविल मॉड्यूलर किचन लेते हो, तो ये दो ऐड ऑन हम लोग डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐड ऑन करके रखते हैं। ऑलराइट, ओके। अगर हम फ्रंट फसाड की बात करें, फ्रंट फिनिशेस, बिकॉज एक हम ओवरऑल एक कंसेप्शन क्लियर कर दें कि अगर हम मॉड्यूलर किचन करें या हम सिविल मॉड्यूलर किचन करें, उसमें जो फ्रंट फिनिशेस हैं, वेदर इट इज़ लैमिनेट और वेदर इट इज़ एक्रेलिक और ग्लास और वीनियर और पीयू, सॉलिड वुड इंक्लूडिंग सॉलिड वुड, ये सारे फिनिशेस, सारे मटेरियल्स हम सिविल मॉड्यूलर किचन में भी ले सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। उसमें कोई आप हमने सिर्फ किचन के बनाने का जो कंसेप्ट है उसको इंडियनाइज किया है, दैट्स इट। सिर्फ जो इंडियन किचन्स की नीड्स होती हैं, जो लेडीज़ किचन में यूज़ करती हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, उसको हमने डेवलप किया है सिविल मॉड्यूलर किचन्स में। Alright. उससे आपका फ्रंट फिनिशेस, डिज़ाइन ऑफ हैंडल्स, वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। वो सेम चीज़ें, सेम कंसेप्ट में आप यहाँ पे भी डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, मतलब अगर हम हैंडल लेस किचन लेना चाहते हैं या विथ हैंडल्स लेना चाहते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल। आप
अगर कंसील हैंडल्स हैं, टॉप प्रोफाइल हैंडल्स, एक्सटर्नल हैंडल्स या इवन हैंडल लेस किचन, हम वो सब कुछ सिविल मॉड्यूलर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस यस Alright. फॉर श्योर। ओके, लास्ट पॉइंट, टाइमलाइन। अगर हम कन्वेंशनल मॉड्यूलर किचन की बात करें तो कन्वेंशनल मॉड्यूलर किचन जो एक अंडरस्टैंडिंग सभी के पास में है कि पूरा किचन फैक्ट्री में बनता है करेक्ट, और पूरा किचन रेडी होकर के आपके घर पे आता है। राइट, वहाँ पर हमारे इंस्टॉलर्स किचन इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर बाइसन बोर्ड रखा जाता है, उसके ऊपर काउंटर लगाया जाता है, और उसके बाद आप डैडो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम सिविल मॉड्यूलर की बात करें तो उसमें टाइमलाइन का क्या डिफरेंस है और एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बेनिफिट है, मतलब ओवरऑल टाइम फ्रेम प्लस ईज कस्टमर के लिए, हाउ कन्वीनियंट इट इज़ व्हेन इट कम्स टू द टाइमलाइन, मतलब एक स्ट्रेच में पूरा काम हो सकता है या ब्रेक हमको करना पड़ेगा, इस पे आप ज़रा बताइए। इसमें बेसिकली जो एक प्रोसेस है वो स्टार्टिंग होता है डिज़ाइनिंग से, कस्टमर की नीड्स उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पूरा किचन डिज़ाइन हो जाता है, पहले फ्रीज हो जाता है, लेआउट फ्रीज हो जाने के बाद उसके ऊपर फिर सिविल का जो प्रोसेस है, स्कर्टिंग है, काउंटर टॉप्स का है, तो वो सब प्रोसेस चालू हो जाता है। ये प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद एक फाइनल मेजरमेंट्स होती है हमारी पोस्ट सेल्स टीम के अकॉर्डिंगली, तो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स ऑर्डर फैक्ट्री पे प्लेस हो जाता है। तो इस तरह का जो किचन होता है वो 2 पार्ट में आपको डिलीवर होता है, यूजुअली कस्टमर को 2 पार्ट में डिलीवर होता है। फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट बेस डिलीवर हो जाता है ताकि उसके ऊपर का काउंटर का काम है, बाकी जो उसके रिलेटेड जो काम है वो फ्लो में चल सके। और सेकेंड अटेम्प्ट में वॉल और टॉल कैबिनेट जो कि प्योरली मॉड्यूलर कंसेप्ट में मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में, तो वो प्रॉपर असेंबल्ड फॉर्मेट में फैक्ट्री से डिस्पैच हो जाता है। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो किचन उनको 2 पार्ट में डिलीवर होता है। ये हम कन्वेंशनल मॉड्यूलर की बात कर रहे हैं। करेक्ट। ओके, अब हम सिविल मॉड्यूलर, उसका टाइमलाइन, उसका बेनिफिट वो क्या है, आप वो ज़रा एक्सप्लेन सिविल करिए। मॉड्यूलर में काउंटर ऑलरेडी पहले बन गया होता है और जो डिज़ाइन हम देते हैं, जो हमने सिविल कंस्ट्रक्शन का ड्राइंग हमने दिया है ऑन साइट, करेक्ट, उस बेसिस पे काउंटर बनता है और फिर उसके बेसिस पे ही इंटरनल जो ड्रॉवर्स या इंटरनल जो कैबिनेट्स आने वाले हैं वो फैक्ट्री पे साइमल्टेनियसली बन रहे होते हैं। ऑलराइट। तो जैसे ही काउंटर का काम हो गया रहता है, इमीडिएटली फैक्ट्री से बेस कैबिनेट्स और ये सब डिलीवर हो जाते हैं। बेस इवन वॉल टॉल भी हम लोग साइमल्टेनियसली बना सकते हैं। ओके, तो इवन वन टाइम में वो कैबिनेट्स पूरा एंटायर किचन वन टाइम में डिलीवर हो सकता है। ऑलराइट, ओके, मतलब कस्टमर ने हमारे को ऑर्डर दिया, हमने साइट पे एग्जीक्यूट किया, सिविल काउंटर बन गया, मतलब क्लाइंट एक्चुअली सिविल काउंटर, अगर उनको टाइम कंस्ट्रेंट है तो किचन शुरू कर सकते हैं यूज़ करना। यस, हमारा किचन अगर 1 हफ्ते और 10 दिन में आ रहा है तो वो पूरा किचन एक साथ में जाएगा, जिसमें बेस कैबिनेट्स, वॉल कैबिनेट्स, टॉल कैबिनेट्स, लॉफ्ट कैबिनेट्स, जो भी यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स एक साथ में जाएंगे। हमारे लोग करीबन कितना दिन लगता है आपके बेसिकली जैसे एक्सपीरियंस के? जब किचन फाइनलाइज हो जाता है क्लाइंट्स के साथ में, हर एक चीज़ रेस्पेक्टफुली हर एक चीज़ साइन ऑफ हो जाता है, वहाँ से आप लगभग 45 to 60 डेज़ का कंसिडर कर सकते हो टाइम। उस 45 to 60 डेज़ में आपका काउंटर का भी काम हो गया होता है जगह पे, बेस्ड ऑन द साइमल्टेनियसली कैबिनेट्स का भी फैक्ट्री पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया रहता है। ऑलराइट। तो जैसे ही काउंटर आपका रेडी होता है तब तक फैक्ट्री पे कैबिनेट्स भी रेडी हो गए रहते हैं। तो बेसिकली 45 to 60 डेज़ का टाइम आप कंसिडर कर सकते हो। और जैसे ही कैबिनेट एक बार ऑन साइट डिलीवर हो गया तो हार्डली 4 to 5 डेज़ इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लेता है। ओवरऑल हम एक हफ्ता कंसिडर कर सकते हैं कि मैक्सिमम वी कैन कमिट टू द कस्टमर के द डे व्हेन वी डिलीवर योर किचन ऑन साइट, मैक्सिमम टाइम पीरियड दैट वी वुड नीड इज 5 to 7 days to complete your kitchen, and our team will move out of the house, give you a proper handover. Yes. So that is the way we can plan the kitchen. Yeah. Okay. So जय, अगर मैं आपको पूछूं कि जो उसका कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज आप दोनों ही फैक्ट्री देखते हैं, बट मटेरियल के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मटेरियल है, कारकस मटेरियल, उसमें क्या कुछ डिफरेंस होता है, और आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, what all materials do we provide
So there is no difference with the conventional modular kitchens and the traditional way which we do it. So when it comes to carcass material, there is no difference. Okay. We use the top quality carcass material and we use the top quality hardware for the joinery of the carcasses. All right. The difference with Radiance is we are very flexible. We are very flexible with the client needs. We are very flexible with the different raw materials and the joinery as well. So that gives a plus to the end customer when he has more options for the raw material when he visits us. Okay. So base material of the carcass, is it plywood? Like, is it boiling water resistant plywood? It is boiling waterproof plywood. Okay. It is boiling waterproof plywood. Yes. All right. And recently we have started giving stainless steel also as an option for base cabinets. Yes. Recently what I know is we have been doing stainless steel kitchens also. Yes. For certain customers of ours. We have stainless Yes. steel also as an option Yes. for base we have cabinet. started giving stainless steel with the required hardware attached to the cabinet. So Okay. that flexibility is also a part of the kitchens that we provide. All right. There is Okay. even more benefit, like we have a 20 years experience, so whenever the kitchen's buying customer from us, he's not buying only the kitchens. Yeah. He's taking 20 year experience along with the Experience. kitchens. Very true. Of That course. is also Yes, important. yes, of course, it is a added advantage when you go back, like whatever we have learned in the industry, whatever we have done in the industry, and all the experience that we have gathered in the last 20 years, we share it with our customers. We bring the best out of it, and we give you a kitchen which is long lasting, practical, and robust, so that we can confidently tell you that we give you a warranty of 21 years in our kitchen. correct. Thank you.